In preference, so with the help of Slater rule, you can explain why s orbital are filled first in preference to filling of n minus 1d orbital. These are the some ns orbital. So how you are filling first s orbital, then that of the d orbital, right? तो तुम पहले क्या करते हो, पहले तुम s orbital को fill करते हो, then you are filling your d orbital, right? So I am taking some example. For example, I am taking the example of potassium. So you are filling first in the 4s orbital, right, instead of the d orbital. So electronic configuration of the potassium, you can see that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. So we have to make it in group on the basis of n. So sigma value that is coming 10 plus 0.85 into 8, right? So whatever the value of sigma is coming, that is 10 plus 6.8, coming around 16.8. So you can calculate the Z effective value, that is coming 19 is the atomic number of the potassium minus 16.8 to effective nuclear charge, that is coming around 2.2, right? If you will fill the electron in your 3d orbital, यदि तुम 4s में नहीं fill करके यदि 3d orbital में fill कर देते, then what is the electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. यहाँ से नहीं, वही है, चलो जाओ बाहर जाओ, नहीं है। So this is the configuration D in other task, right? So sigma, if you will calculate, that will coming around 18, ठीक है, 18 आएगा, तुम कैलकुलेट करके देखना कैसे आया, ठीक है, मैंने जो फॉर्मूलाज तुम्हें बोला है उससे कैलकुलेट करके देखना. So 19 minus 18, that is coming around 1. So you can see the effective nuclear charge, if you are filling electron in 4s, that is 2.2, and if you are filling the electron in d orbital, then effective nuclear charge is coming around 1. So more the effective nuclear charge, जितना ज्यादा तुम्हारा effective nuclear charge होगा, with which the incoming electron is attracted by your nucleus, वो उतना ही ज्यादा तुम्हारे न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएगा, and more stable will be your electron. तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो बाइंड रहेगा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे न्यूक्लियस से, राइट? दैट्स व्हाई if more the effective nuclear charge, more stable that nuclei is, right? Therefore you have to fill the electron first in the 4s orbital, then that of the d orbital, right? Clear है बेटा यहाँ पर सभी को? यस मैम. यस मैम. मेरे को ऊपर स्क्रॉल करना है मैम, मेरे को ऊपर स्क्रॉल करना है, मिस हो गया था बीच में. बोलो मैम सबसे ऊपर आपने यहाँ स्टार्टिंग में किया था ये बेटा कैलकुलेशन देख लिया. ओके, क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट? यस मैम. हाँ बोलो बेटा, बोलो. Shall we move to next part? Sometime in the exam they can ask like question, explain why while removing
The electron, it is from nth s electron, then your n minus 1d इलेक्ट्रॉन। जब भी तुम रिमूविंग करते हो तब भी तुम्हारा s ऑर्बिटल से ही जाता है इंस्टेड ऑफ d ऑर्बिटल। जब फिलिंग कर रहे हो तब भी तुम्हारा s ऑर्बिटल में पहले जा रहा है देन दैट ऑफ द d ऑर्बिटल। इसके लिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें पूरा लिख देती हूँ। दो n minus 1d orbital is filled later on। एक्सप्लेन। कई बार तुमसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिंक का ले लेते हैं। जैसे जिंक, so you have to explain this one using the Slater rule, with the use of Slater rule you have to calculate the effective nuclear charge when you are filling the electron in 4s as well as you are filling the electron in 3d। तुम्हें दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट। इफ यू आर कैलकुलेटिंग, तुम निकाल के देखना, यदि तुम 4s इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हो जिंक के अंदर, देन यू आर कैलकुलेटिंग, देन अराउंड तुम्हारा कुछ 5.8 लास्ट क्लास में आया था, कुछ इतना आया था कि बेटा चेक करो। बाहर जाओ बेटा। और when you are filling electron in the 3d orbital, then your Z effective nuclear charge is coming 8.85। बेटा इतना आया था क्या, चेक करो, तुमने मैम निकाला होगा ना। 4s में, मैम 4s में 4.35 आया था। 4.35 है। 4.35 है, ठीक है। और इसमें कितना था 3D में? 8.85। 8.85 था, ठीक है ना। सो यू कैन से lesser the Z star, more easily you can remove the electron। अब पहले मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था, जब इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी उसके अंदर फिलिंग तुम करोगे, अदरवाइज यू हैव टू fill the other one, right? So in this one your effective nuclear charge in case of the 3d electron, that is more, so you have to fill the electron first in the d orbital, then that is the 4s। when we are talking about the removing the electron, so when the effective nuclear charge is less, then easily you can remove the electron from that orbital, that's why you are removing the electron from the 4s than that of the 3d orbital। clear hai beta? So in presence of 3d electron, 4s become outer। ये तुम्हारा जो है आउटर बन जाता है। ये थर्ड एप्लीकेशन क्या हो सकती है तुम्हारी? विथ द हेल्प ऑफ स्लाटर रूल we can explain variation of certain properties along a period। You all know this is your periodic table, right? Something like this, right? So in the downside your size will increase, your metallic character will increase, and when you are moving right to left, your ionization energy will increase, your electron affinity will increase, your electronegativity will increase, right? These all the parameter will increase, right, when you are moving from left to right, right?
Similar way, when you are moving downside, in case of the S block element, similar way, when you are moving downside, your size will increase, metallic character will increase, your electron affinity, your ionization energy, and electronegativity will decrease on the downside, right? So these all the property you can explain by the Slater rule. तुम ये सब कैलकुलेशन करोगे, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले से बताते आए हो, राइट? तो ये सारी चीजें जो है स्लाटर रूल के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सिमिलर वे में कई बार क्वेश्चन तुमसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, इफ देयर इज इंक्रीज इन द साइज अलोंग the period, atomic number will increase along the period, then this increase is more extent than that of the main group, than that of the transition element. When you are moving in like your S block element, you are when you are moving downside यदि तुम जा रहे हो, then your size will increase in this one, right, in S block element. But when you are moving in D block element, so that change is not so high, sometimes that is constant. So this thing also you can explain by the Slater rule, वो भी तुम Slater rule के basis पे बता सकते हो, right? तो ये कुछ चीजें थी कि तुम कैसे बता सकते हो। कई बार तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, why in case of transition element the decrease in size is of less extent, extent क्यों कम क्यों है ट्रांजिशन एलिमेंट का, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार पूछ लेते हैं, why the increase in ionization energy along the transition energy is very less by less extent, why? तो ये कुछ क्वेश्चन है जो तुमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं तो हम इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? लाइक in case of main group element, since the outer electron is being filled in orbital with the same value of n, or you can say across the period, at each step your atomic number is increase, right? atomic number जो होता है वो increase हो जाता है by 1 करके increase होता है तुम्हारा atomic number, right? So you are multiplying by the 0.35 factor, so at each step sigma will increase by 0.35 factor, ठीक है? And according to the Slater rule, therefore at each step effective nuclear charge will increase. That's why your effective nuclear charge is increasing by, तुम्हारा एटॉमिक नंबर इतना इंक्रीज हो रहा था, इफेक्ट सिग्मा फैक्टर इज 0.35, so effective nuclear charge increased by 1 minus 0.35, right? That is coming around 0.65. तो तुम्हारा effective nuclear charge जो है 0.65 जो है, when you are changing from one to other element, तो तुम्हारा across period 0.65 के डिफरेंस से तुम्हारा effective nuclear charge increase होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 1s2 2s1 और 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, right? So you can say as effective nuclear charge increase at each step by 0.65 in main group element. That's why you have make the group of the
S and p orbital, right? You didn't added d and f orbital in this group, right? You have taken them separately. So when the main group elements are there, then you are increasing the effective nuclear charge by 0.65 factor, right? In case of the transition element, this increase at each step is by less amount. वो भी मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बताती हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, स्कैनेडियम के बाद कौन सा आता है, टाइटेनियम वगैरह, राइट? सो मैं दो ये एग्जांपल लेके बताती हूँ तुम्हें। स्कैनेडियम एटॉमिक नंबर इज 21, राइट? सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2. So these are n minus 1. This is 10 plus these are the 9 electron into 0.85 plus 1 electron in s orbital. So total your sigma value is coming around 17.65, right? So your effective nuclear charge will be 21 minus 17.65. So how much will be coming? Calculate करके बताओ मुझे फटाफट। इतने मैं टाइटेनियम के लिए लिख रही हूँ, कैलकुलेट करो फटाफट। अब इन टाइटेनियम योर 3d2 है, राइट? मैम 3.35। 3.35, ठीक है। अब इसी वे में तुम जो है टाइटेनियम के लिए लिख लो कॉन्फ़िगरेशन। हमारा डिफरेंस कहाँ पे आएगा? सिग्मा में वैल्यू में डिफरेंस आएगा 10 प्लस 10 इंटू 0.85। यहाँ पहले 9 थे, 1 इलेक्ट्रॉन हैव इंक्रीज इन द d orbital, so that's why I have taken 10 plus 0.35. So sigma value is coming around how much बेटा? कैलकुलेट करके बताओ। मैम राइट बेटा, इतनी है 18.8। ये 85 है, कितना है? इतना ही है ना? So you can see Z effective will be 22 minus 18.85. तो कितना आया बेटा वैल्यू बताओ फटाफट। मैम 3.15। 3.15. So this change is not so high, 1 यूनिट का भी चेंज नहीं है। तभी तुम बोल रहे हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट में there is a change is of less extent, right? There is not so much change is there in case of the transition element, right? So sigma increase by 8.85, right? And Z increased by 1. So effective nuclear charge increased by only 0.15. इतना ही डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा। यदि 1 को माइनस करोगे 0.85 से, सॉरी 1 minus 0.85, so effective nuclear charge change will be 0.15, right? So इतना ही तुम्हारा जो है चेंज आएगा, not more than that, right? So that can be going to be the 0.25, उतना ही ज्यादा, so that's why that is not going to be of large extent, right? Therefore as Z star is increase from less amount, not of more amount, right? So ये तुम यदि तुमसे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं तो तुम इस वे में इसको आंसर करोगे विद एग्जाम्पल। क्लियर है मैम एक बेटा? बार ये दोबारा रिपीट करना। ये जो सारा बताया है? नो मैम, वो सिग्मा इंक्रीज बाय 0.85 वाला।
अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने बोला बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग बाय द 0.85 फैक्टर, राइट? सो सिग्मा इंक्रीज ओनली, यहाँ पे तुम्हारा 10 into 0.85 है, यहाँ पे 9 into 0.85 सा मीन्स 9 times 0.85, here 10 times 0.85. So your sigma is increasing by only 0.85 factor, right? And your atomic nuclear atomic number is increased by 1, right? So if your effective nuclear charge change will be 0.1 minus 0.85, that is coming around 0.15. So your effective nuclear charge increased by only 0.15 factor, not more than that. Just a minute. हेलो, हाँ जी, अच्छा कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, इतने उतार लो, इतने नोट डाउन करो इसको। आंटी कपड़े निकालो, मैं नहाने जा रही हूँ। बेटा आप सबकी आवाज ना इसमें जाती है, इसलिए यहाँ पे आके मत बोलो। भेज रही हूँ, वेट कर 1 मिनट। इनको बोला आवाज नहीं करे, आवाज अंदर से आती है। ओके बेटा, यहाँ पे सभी को क्लियर है? मैम एक बार ऊपर स्क्रॉल करना। ओके, मैम और ऊपर कर दो। मैम जो इसकी पहली स्टेटमेंट है ना, एक इन केस ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ओके 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 वो बता दो क्या लिखी हुई है ये। ओके। आई टोल्ड in case of main group element, your outer electron is being filled in the orbital with same value of n, right? तुम्हारा जो आउटर, जैसे ये है सेल है, जब तुम फिलिंग कर रहे हो, राइट, तो ये तुम्हारा सेम ही सेल रहता है, राइट? 2s2 यस 2p1, तो मेन ग्रुप के अंदर तो सेम सेल के अंदर जाएगा, राइट? अक्रॉस द पीरियड, जब तुम जैसे पीरियड को चेंज कर देते हो, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम द एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, तो यू आर इंक्रीजिंग द जेड वैल्यू बाय द 1। जेड की वैल्यू कहाँ से, 1 से ही चेंज हो रहा है ना तुम्हारा, जब तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, राइट? सो at that time, at each step sigma increase by the 0.35 factor. तो तुम 35 फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते हो, 0.35 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो ना एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। यस मैम। लाटर रूल एक बार बेटा न्यूमेरिकल सोल्व करो, अदरवाइज तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ठीक है?
So at each step, your Z effective nuclear charge increase by atomic number is 1 that you are increasing, minus sigma factor is increased by the 0.35. So you have to subtract from the 1, that value is coming around 0.65. So your effective nuclear charge increased by 0.65 factor. Clear है? Yes, ma'am. Or in case of the your transition series, you can see in case of transition element, electron is going in previous cell, right? एक ही सेल के अंदर जा रहा है और वो एस से पहले वाली है, राइट, n-1d है, राइट. सो दे आर इंक्रीज बाय द 0.85 फैक्टर. यहाँ पे क्या है, इंक्रीज जो हो रहा है तुम्हारा 0.85 फैक्टर का हो रहा है, राइट. लेकिन जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में से निकालते हो, यू आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 0.85, so you are getting 0.15, right? So that extent is very less than the in comparison of the main group element. So therefore you can say as increase is by less extent, therefore decrease in size is by less extent. Hence, increase in transition element is increase of ionization energy in transition element is by less extent. तुम्हारा साइज का एक्सटेंट भी कम है और तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी का भी एक्सटेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में कम रहता है. बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये तुम्हारा एग्जाम में आ जाएगा तो एक्सप्लेन कर दोगे? इज इट क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. But there are certain limitations of Slater rule also present. What are these limitations of Slater rule? उनको बोलना आवाज आ रही है उनकी. धैर्य, आवाज नहीं करो बेटा. So what are these limitations? According to Slater rule, all higher orbital cause shielding equal to higher orbital will be called the shielding to the that cell, or you can say to the all the orbital, right? जो भी तुम्हारे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सभी के अंदर जो हायर ऑर्बिटल्स हैं अपने आप ही उसके अंदर शिल्डिंग करेंगे, जितने भी उसके साथ में जो इतने भी ऑर्बिटल्स है उसके उन सभी में, राइट. बट इवन देन higher orbital can penetrate into the inner orbitals. Just a minute. मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ? आई एम सेइंग दैट जितने भी हायर ऑर्बिटल है दे ऑल आर कॉजिंग द योर शिल्डिंग, राइट. जितने भी एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, दे ऑल आर कॉजिंग द शिल्डिंग, राइट.
सो योर प्रीवियस ऑर्बिटल है या जितने भी उससे हायर ऑर्बिटल से जितने भी पहले वाले जितने भी ऑर्बिटल है सभी के अंदर, राइट। इवन देन your higher orbital can penetrate into inner orbitals also, they can penetrate, right। जैसे तुम बोलते हो एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन ज्यादा है, एस ऑर्बिटल की सिल्टिंग भी ज्यादा, राइट, क्योंकि उनके अंदर नंबर्स ऑफ पीक्स ज्यादा है एस ऑर्बिटल में, राइट। सो यू कैन से लाइक इन दिस वे, सिंस एस जो तुम्हारा ऑर्बिटल है पेनिट्रेट मोर they have more inner peaks than p orbitals, therefore as screening of s have more screening effect। मैम therefore के बाद क्या लिखा है? कहाँ पर they have मैम therefore s के बाद orbital penetrate more, कहाँ पर लिखा, अच्छा therefore as screening of s has more screening effect, राइट। जो तुम्हारा s ऑर्बिटल है उसकी स्क्रीनिंग जो है वो ज्यादा है, एज वेल एज पेनिट्रेशन आल्सो मोर, राइट। दोनों ही चीजें जो s ऑर्बिटल की होती है वो ज्यादा होती है, राइट। बट स्लाटर हैज पुट s and p together, उसने क्या किया, दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया है, जबकि s की पेनिट्रेशन और सिल्टिंग डिफरेंट है देन दैट ऑफ द p ऑर्बिटल, बट ही टोल्ड नहीं, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 0.35 फैक्टर बोथ इन बोथ केसेस। So this is the one of the limitation of your Slater rule. Third case, the Slater, the screening by inner electron irrespective of the fact whether they are s, p, d और f, वो कौन से ऑर्बिटल से है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसने बोला कि स्क्रीनिंग इज ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन, राइट। उसने नहीं देखा कि s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है या s ऑर्बिटल है, राइट। उसने बोला n-1 के बाद जितने भी ऑर्बिटल्स बचेंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये तो नहीं है ना, s की सिल्टिंग डिफरेंट है, p की डिफरेंट है, d की डिफरेंट है, f की डिफरेंट है। of the fact whether they are s, p, d और f, ये कौन से ऑर्बिटल के हैं उससे कुछ मतलब नहीं है उसको। he told in case of all there is a similar type of behavior, right। so screening by the inner electron irrespective of the fact whether they are s, p, d or f has been taken to be same। क्लियर है बेटा? क्या लिमिटेशन हो गई? और जो मैंने पहला पॉइंट बताया था ना, अकॉर्डिंग टू द स्लाटर रूल ऑल हायर ऑर्बिटल कॉज शिल्डिंग, तो यहाँ पे लिख दो 0 लिख दो, थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। जितने भी हायर ऑर्बिटल्स की जितनी भी है उसकी उसने स्क्रीनिंग क्या बताई थी, 0 बताई थी, राइट। ये मेरे से मिस हो गया था यहाँ पर, ठीक है। और जबकि हायर ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं इनर ऑर्बिटल में, राइट। तो उसने बोला था, स्लाटर ने बोला था इन सब की वैल्यू जो है हम 0 रखेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन की हमें निकालनी है उससे यदि कोई हायर ऑर्बिटल है उन सब की वैल्यू हम 0 रखते हैं, राइट। सेकेंड थिंग उसने बोला था एस ऑर्बिटल is penetrate more, they having the more shielding also, right।
but he have make the same group of s and p orbital together, right? Third one, he told the screening by the inner electron irrespective of the fact s है p है d है या f है, उन सबको उन्होंने सेम बोल दिया था, राइट? So this was which is wrong. ठीक है, क्लियर है बेटा ये चीजें? Shall we move to next topic? किसी कोई डाउट बेटा? हाँ मैम। Okay. Now we have seen in the atomic structure. हमने atomic structure पढ़ा था ना starting में. In that one we have done the solution of the Schrodinger wave equation. When you are taking the polar coordinate, you are getting this one, right? Radial, this is the angular part, right? R A थीटा फाइव, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। जो नए बच्चे हैं एक बार पुराने बच्चों से पूछ लो, नहीं तो जो तुम्हारी सत्य प्रकाश की बुक है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या है फुल्ली सॉल्यूशन नहीं किया था। जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म में लिखा था, देन वी हैव कैलकुलेटेड this value, right? For telling about the north, how to make a plot of the r versus r, psi versus r and psi square versus r, ये सभी हमने प्लॉटिंग करी थी, राइट? हमने एंगुलर पार्ट को उस टाइम पे नहीं लिया था, राइट? इसको पूरा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, r and l, your radial part is depending only on the your principal quantum number and your sometime angular quantum number, and your a angular part will be depending on your l and f angular quantum number as well as on the magnetic quantum number, right? So in the angular part we have seen, I have given the some example also. In angular part इसको हम a से denote कर रहे हैं, right? Angular part of wave function that involving theta and phi. That's why that is depending on the angle. That is independent of n, right? n पे डिपेंड नहीं करता, तुम्हारी कौन सी सेल है उस पे डिपेंड नहीं करता. दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द योर एंगल, दैट इज द थीटा एंड फाई, राइट? सो ए टेल्स us distribution of electrons in it tells the distribution of electron in what direction, कौन सी डायरेक्शन में है, in what direction. तुम्हारा जो डायरेक्शन के बेसिस पे ये जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है. It tells directional distribution that is not like a radial distribution, not be like a radial distribution. Radial distribution के जैसे नहीं है, right? That's why it tells about shape of the orbital. ये मैं इसलिए तो हमें शेप बता देता है. शेप कैसे पता चलेगी? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा बोलता है कि योर प्रोबेबिलिटी इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस, कहीं पे भी तुम्हारे प्रोबेबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, राइट? सो बट एंगुलर पार्ट इज टेलिंग that is totally depending on the directional distribution, not like a radial distribution. So directional distribution है तो जैसे जैसे तुम्हारी डायरेक्शन आती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी पता चलती जाएगी, राइट? सो फ्रॉम दैट वन यू कैन टेल अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल. तुम्हें शेप्स जो है ऑर्बिटल की पता चल जाएगी. And this can tell where there is maximum probability
ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, राइट। सो ये ही तुम्हें बता देता है नंबर्स ऑफ नोडल प्लेन, जो तुम्हें आर पार्ट जो नहीं बता पा रहा था, राइट। देयरफॉर angular part of wave function of s, तुम्हारा नोडल प्लेन्स वगैरह को बता रहा है। एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल डज नॉट इन्वॉल्व थीटा एंड फाई। ये मैंने तुम्हें बताया था कि उसके अंदर थीटा और फाई नहीं होता। यदि मैं इसको कैलकुलेट करके तुम्हें बताऊं, यदि हमारी एल की वैल्यू 0 है या एल की वैल्यू तुम्हारी 1 है, सो ऑन दैट बेसिस एम इज इक्वल टू 0, एम एस इज इक्वल टू +1, राइट। सो दिस इज फॉर द एस ऑर्बिटल। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एस ऑर्बिटल आ जाएगा। यदि एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू 0 है, राइट। यदि एम की वैल्यू एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, राइट। सो यदि ये एस ऑर्बिटल है तो तुम्हारा जो एल की वैल्यू जो निकल के आती है फॉर एस ऑर्बिटल, so your angular part will be giving, right, that is coming around 1/4 pi, right. If you will see in detail, this wave function doesn't have any theta and phi, इसमें कभी भी theta और phi नहीं होता है, that's why this is not involve any theta and phi, that's why your orbital is spherical. Therefore always s orbital is spherically symmetrical, since independent of theta and phi. Very, very important. Every time they are asking this question, so you should know, right? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम वो एमएस ऑर्बिटल स्पिन क्वांटम नंबर नहीं होता एमएस? हाँ वही है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर ही है वो। मैम वो तो हाफ में और -हाफ में लेते थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा है, स्पिन क्वांटम नंबर तो ये, मैम उसको sorry, तो एमएल से हाँ ये डिनोट। हटा दो, ये हटा दो, चलो। एम की वैल्यू में लिख रही थी तो गलती से ऐसे लिखा गया, ठीक है। जो एम की वैल्यू है दैट कैन बी +1, 0 एंड -1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जो Okay, तुम्हारा एल है वो मैंने बताया, इसकी वैल्यू जो तुम्हारी 0 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 है। दिस इज द केस ऑफ द एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के केसेस में हमने जो साई की वैल्यू निकाली थी, जो तुम्हारा साई हो चाहे साई स्क्वायर की वैल्यू हमने जब देखा था, तो दैट इज इक्वल टू समथिंग 1/4 पाई ब्रैकेट हाफ मीन्स √1/4 पाई, राइट। So in that one we can see some of the exponential term is there, m phi x something, right. So that term is was also there with this one, right. So I am not writing whole the term, just I am telling. So in the exam you can write like in this way only, right, no need to write full wave function, okay. So you can say in that wave function there is a this is independent of theta and phi, no theta and phi and no angle dependency of the s orbital is there in the solution, right. So that's why your s orbital is spherically symmetrical. ये तुम्हारा जो s orbital, that's why that is the spherically symmetrical, ठीक है। ये बता दोगे बेटा, तुमसे यदि एग्जाम में पूछेंगे तो। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें नहीं समझ में आएगा ये चीजें। अब जब हम ये निकाल रहे हैं m की वैल्यू -1 +1 और 0 है, राइट। यदि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन 2s है, 2p ऑर्बिटल है, जो भी है, राइट।
सो इलेक्ट्रॉन इज अंडर कंसिडरेशन 1s है, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है, राइट। मैंने तुम्हारा एल की वैल्यू जो है -1 है, ठीक है। -1 क्या हो गया, मतलब पी जेड ऑर्बिटल है ये। एम की वैल्यू जो होगी 0 हो गई, राइट। सो योर वैल्यू इज कमिंग अराउंड 1/4 पाई, तुम्हारा जो वेव फंक्शन की वैल्यू जो आती है कोस थीटा, राइट। सिमिलर वे में पी एक्स के लिए और पी वाई के लिए भी हमें जो है उसमें वैल्यूज दी हुई थी। एम की वैल्यू जो होगी +1 हो गई, एम की वैल्यू जो होगी -1 हो गई। so that value is coming around 3/4 पाई 1/2 sin theta cos phi. Similar way 3/4 पाई 1/2 sin theta sin phi, right. So this is the value for the pz orbital, then px, then py, right. For the pz orbital, m value is magnetic quantum number is 0, then +1, then -1, right. So हमारे पास, if you can see in the solution, there are the theta and phi angles are there, right. So sometime in the exam they can ask about the shapes of the orbitals, तुमसे shapes पूछ देते हैं exam में, right. So in this one we can get two spheres touching each other and tangentially to xy axis, right, and having opposite sign, sorry. So one is having a positive sign and other one is having a negative sign, right. एक का पॉजिटिव साइन आ जाएगा, एक का नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट. सो दैट्स व्हाई समटाइम दे कैन आस्क द एंगुलर पार्ट ऑफ द पी ऑर्बिटल. एंगुलर पार्ट कौन सा है, एंगुलर पार्ट ये हो गया ना तुम्हारा, साइन थीटा और साइन फाई आ रहे हैं इसके अंदर. सो इन द दे हैविंग ए अपोजिट लोब and opposite sign, right. So if they can ask about the, you have to draw the orbitals. So how you have to draw the orbital? If pz orbital is there, right. So your tangent on the x and y axis, on the pz axis is the there is the lobe, plus sign, negative sign. This is the your y axis, this is your x axis. This is for the pz, py. So you can think this is the y orbital, these are the two orbital, this is the x orbital, this is your z orbital, z axis, sorry, right. So this is for the py. Third one is the px. जब भी तुम एग्जाम में बनाओगे एक्सिस का ध्यान रखोगे, ठीक है. एक्सिस को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं, राइट. जब भी तुम्हें कोई भी ऑर्बिटल बनाना है, पी वाई बनाना है, पी जेड बनाना है, पी एक्स बनाना है, राइट. सो ऑन दैट ऑर्बिट ऑन दैट एक्सिस यू हैविंग द लॉब्स, राइट. मैम पी वाई और पी एक्स ऐसे एक्सिस के बीच में नहीं होते थे डायगोनली? नो 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 नो. पी वाई, यदि पी वाई ऑर्बिटल तुम्हें ड्रॉ करना है तो लॉब्स विल बी ऑन द वाई एक्सिस, राइट. यदि तुम्हें पी एक्स ड्रॉ करना है, योर लॉब विल बी ऑन द एक्स एक्सिस. if you want to draw the pz orbital, then your lobes on the z axis. एक्सिस को जो तुम बोल रहे हो ना कि वो एक्सिस के बीच में नहीं, तुम उसको चेक करना, उसके अंदर जो एक्सिस होगी ना, जिस एक्सिस पे तुम ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज if py you are drawing, so that axis will be py. Y axis is there, right. If you are drawing the px, then your axis will be the x axis and your lobe will be on the x axis. तुम किसी भी डायरेक्शन में इसको बनाओगे, कैसे भी कर लो, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टली दिखा दो या तुम वर्टिकली दिखा दो, लेकिन जो भी एक्सिस बनाओगे उस एक्सिस के ऊपर ही तुम्हारी लोब्स होना चाहिए, राइट.
sometime in the paper they can ask you, you have to draw the shapes of the p orbital, right? Then you can draw like in this way also, तुम ऐसे भी draw करके बता सकते हो, right? दिस इज योर जेड एक्सिस, ये तुम्हारा पी जेड हो गया. दिस इज योर एक्स एक्सिस, तो पी एक्स हो गया. दिस इज द वाई एक्सिस, तो ये तुम्हारा पी वाई हो गया, राइट? सो इन दिस वन you there is no need to show the no sign, right? because your psi square become positive and elongated. तुम इस वे में भी तुम्हारे जो है शेप्स को दिखा सकते हो, राइट? समटाइम हमें कुछ एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. ये क्लियर हुआ मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? वापस से बताऊं? Shall I tell again? नो मैम. ये क्लियर हुआ मैंने क्या किया? यहाँ पे साइन क्यों नहीं लगाए? एक तो मैंने तुम्हें राउंड राउंड सर्कल में लॉब्स बताई है, राइट? जब हम पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को बता रहे हैं, राइट? वेव फंक्शंस को हम बता रहे हैं, राइट? तो इसके अंदर हमने तीनों ही ऑर्बिटल्स जो है, ऑर्बिटल क्या करता है? वेव फंक्शन को डिफाइन करता है, राइट? तो हमने पी जेड, पी वाई और पी एक्स को हमने ड्रॉ करके बता दिया, राइट? अब व्हेन यू आर सीइंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो दैट टाइम यू आर टेकिंग द साई स्क्वायर, राइट? सो साई स्क्वायर जब ले रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है. एंड यू आर टेकिंग द साई स्क्वायर, सो योर लॉब विल बी एलोंगेटेड. एलोंगेटेड करके बताओगे और तीनों को ड्रॉ कर दोगे, राइट? क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Okay. Sometimes we are reading some word Jared और unjared. ये दो वर्ड हम कई बार पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं तो कई जगह पे क्या है, जी लिखा होता है, कई जगह पे यू लिखा होता है, राइट? तो दिस यू एंड जी इज टेलिंग अबाउट द सिमेट्री. यदि तुमने सिमेट्री एक्सिस पढ़ा हो थोड़ा बहुत, सो जी मीन्स even symmetry or u means your odd symmetry. Means when you are this is the sum of the axis, right? And you are rotating your molecule. This is your axis, right? Sorry, this is your axis, main axis, principal axis इसको बोल देते हैं. इसके थ्रू यदि इसको रोटेट करते हैं, राइट? तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. यदि दिस इज योर मेन एक्सिस, इफ यू आर रोटेटिंग, राइट? यहाँ तो हमने वो नहीं दिखाया, लेकिन हम यदि यहाँ पे देखें, दिस इज योर एक्सिस, राइट? यदि तुम इसको रोटेट करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इफ दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, if you are rotating, your negative will go up, your positive will go down, right? So your axis will be changed, right? So that time you are saying that p orbital is unjared, और symmetry हो गई है, symmetry change हो गई है. That's why your p orbital is unjared. There is a change of the symmetry in case of the p orbital. So for the p orbital you are using the मैम एक बार term रिपीट u. कर दीजिए प्लीज. हाँ, मैं बोल रही हूँ because you are giving here the sum of the sign, right? मैं जैसे दूसरा पेन यूज कर रही हूँ, right? So here I am taking sum of the principal axis. Principal axis क्या होती है? Axis. This is the one of the axis through which you are seeing that when you are rotating your molecule at 360 degree, so there is a change in symmetry or not, right? So if I can say this is your principal axis in case of the p pi orbital, when you are rotating as 360 degree, right? 360 या 180 degree पे, पहले हमने 180 पे rotate करके देखा, right? So your positive will be coming here, your negative will be going there, right? So your
सिमेट्री विल बी चेंज, तुम्हारा जो सिमेट्री है वो चेंज हो गया, राइट। सो जब सिमेट्री का एक्सिस सिमेट्री चेंज हो जाती है, जस्ट अ मिनट, हेलो, वो एनवलप लेके गए हो क्या? तो फिर कैसे पोस्ट करोगे? वापस आओ। जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ, I was telling when you are exchanging the you are rotating on the principal axis, if there is a change of the sign of the lobes, right? So means their symmetry change. So you are saying that molecule is unjarred, and you are using for that orbital you are using the term U. हम U लिखते हैं, right? So if you are reading in some books, they are using U and G. So don't take wrong thing, right? So U means unjarred and G means jarred. So your p orbital are unjarred, right? And your d orbital are jarred. S orbital is also jarred. तुम्हारा s orbital भी jarred होता है, d orbital भी jarred होता है, but your p orbital is unjarred because there is a change of the symmetry. But is it clear? यस मैम। Clear हो Yes. गया? मैम 360 डिग्री रोटेशन पे तो सिमेट्री सेम रहेगी। हाँ, 360 पे सेम रहेगी। देन वी हैव टू गो फॉर द 180 डिग्री आल्सो, 90 डिग्री आल्सो। वी आर सीइंग ऑन ऑल द एक्सिस, राइट। सभी पे देखेंगे, सभी एंगल पे रोटेट करके देखते हैं। यदि उसमें कोई चेंज आता है तो हम बोलते हैं वो अनजैरेड है, राइट। क्लियर है बेटा? यस अब आई मैम। एम टेकिंग द Yes, एग्जांपल ma'am. योर डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए भी मैं बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है। अब नाउ इन केस ऑफ द डी ऑर्बिटल, L is equal to 2, you having the 5 orbitals. ये सब चीजें तुम्हें निकालनी आती है। And listen. So your m value is, envelope दे दो उनको। m value is -2, -1, 0, 1 and 2, right? They are the 5 orbital in case of the d orbital. So when you are applying any of the your electric or magnetic field, तुमने स्टार इफेक्ट और G-man इफेक्ट पढ़ा हुआ है ना बेटा? Have you heard about the G-man and Stark effect? यस मैम। Yes, ma'am. Right. So you are saying when you are applying the magnetic effect or the electric discharge on that any of the orbital, there are numbers of lines are there, right? So similar way, when you are applying a electric or magnetic effect on the d orbital, so in case of the p orbital, they are degenerate. But d orbital, but because p orbital, they are not splitting under the effect of the magnetic or the electric field. But when you are applying the electromagnetic field on the your d orbital, then they will be splitting into the T2g and EG orbital.
ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, या ये वाली कोई सी भी फील्ड है उसमें ये जो है ये हमारे स्प्लिटिंग कर जाते हैं T2G और EG में। ये तुमने शायद पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ बेटा प्लस 2 में? मैम पढ़ा तो है पर आज तक हमें समझ में नहीं आया। हाँ मैं वो बता रही। हाँ बेटा टेप वहीं पे देखो, वो गणेश और अमित ले रहे थे कल उस इनकी आए हुए उनसे टेप मांग ले, बोले एक पर दो। EG means doubly degenerate. Doubly degenerate means in this one two orbital are there, that is the dx square minus y square और dz square in case of the EG। इसमें तुम्हारा dxy, dyz and dzx ये तीन orbitals होते हैं, right? So ये that's why you are saying that is the triplet degenerate। 3 d orbital are at the same energy level। degenerate का मतलब तो उनकी energy same है, right? Similar way dx square minus y square and dz square they are the doubly degenerate because 2 orbital having the same energy level। G means gyret, इनकी सिमेट्री जो है सेम रहती है, चेंज नहीं होती है इन d ऑर्बिटल्स में, राइट? 2 T2 एंड E ये इनका नाम जो है दिया गया है, ठीक है? क्लियर? अब नहीं भूलोगे? इज इट क्लियर? क्या चीज बताई मैंने? इज इट क्लियर बेटा? रिप्लाई कर दो, मुझे समझ में मैम नहीं इट इज आता। क्लियर, बट टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में ये भी तो होता था कि ऊपर नीचे होते थे, जैसे EG हाँ ऊपर हो जाता था। वो जो है वो बाद में पढ़ोगे, अभी के लिए तो इतना वो थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में आएगा तुम्हारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ना, वो तब करेंगे। अभी मैं सारा चीजें बताने लग जाऊंगी तो हमारा सिलेबस फिर पीछे रह जाएगा, ठीक है? ये जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि कहीं कहीं पे ये टर्म्स यूज होती है तो बस तुम याद कर लो अभी। इसके अंदर क्यों ऐसे होता है ये मैंने तुम्हें बता दिया। ऊपर नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जब तुम अप्लाई करोगे वो फिर बाद में आता है तुम्हारा, ठीक है? अब नाउ इन ऑल द केसेस राइट यू आर सीइंग। बोलो बेटा। ये स्प्लिट कब होता है? जब इस पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट डालते हैं? हाँ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही तुम डालोगे इन पे डी ऑर्बिटल पे, सो उसकी एनर्जी जो है लाइक दिस इज द योर डी ऑर्बिटल, राइट? यू आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो योर ऑर्बिटल विल बी स्प्लिट इन द 2 ग्रुप्स, राइट? ये तुम्हारा T2G हो सकता है या यहाँ पे EG भी आ सकता है, यहाँ पे EG आता है। सो यू हैविंग द 3 ऑर्बिटल हेयर, 2 ऑर्बिटल हेयर, राइट? इसी वे में दिखा देते तुम तुम्हारे +2 में, राइट? ओके ठीक है, तो वो जो है स्प्लिटिंग हो जाती है क्योंकि जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाली तो कुछ ऑर्बिटल दे आर मूविंग टू द एक्साइटेड स्टेट एंड सम आर मूविंग टू द डाउनवर्ड स्टेट, राइट? कुछ स्टेबलाइज हो जाते हैं, कुछ डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जो स्टेबलाइज होते हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, राइट? सो ये भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे, क्यों स्टेबलाइज हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? So you can say in the d orbital, in the case of the d orbital, there will be how many lobes are there? In case of the d orbital, यदि तुम्हारा T2G है तो how many lobes are there? There are 4 lobes are there, right? And when you are applying the field and they are you are finding out the probability of finding the electron, means that is the psi square you are seeing, so their orbital will be, they will be little elongated, वो थोड़ा elongated हो जाते हैं, right? But in d orbital you are seeing, नोट डाल देना इसको, in opposite side, opposite lobes sign are same। जैसे p ऑर्बिटल में डिफरेंट थे, इसके अंदर सेम रहते हैं। जैसे T2G हमारा है ऑर्बिटल, इसके अंदर हमारे पास 3 है केसेस, dxy है, dyz है, dzx है, राइट? एंड लोब विल बी in between the axis। तुम्हारा जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर जो तुम्हारी लॉब्स रहती है इन बिटवीन द एक्सिस रहती है, एंड देयर विल बी नो प्रोबेबिलिटी ऑन द नोडल प्लेन। प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी तो हाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑर्बिटल?
लाइक DXY मैं ड्रॉ करके बताती हूँ तुम्हें. दिस इज योर ऑर्बिटल. Right. So your opposite lobe having the same sign, right? This is your x-axis, this is your y-axis. So this is DXY, right? ये एंगुलर पार्ट तुम ड्रॉ कर रहे हो, राइट? सिमिलर वे में DYZ के लिए this is your y-axis, this is your z-axis. So you are drawing DYZ, right? So similar way में minus, right? Similarly for the ZX, तुम्हें एग्जाम में देखना पड़ेगा वो कौन सी एक्सिस में बोल रहा है ड्रॉ करने को, तो उसी की बेसिस पे तुम्हें वो ड्रॉ करना है. ठीक है बेटा. EG के अंदर तुम्हारा क्या रहता है? In T2G that is in between the axis, and in case of the EG lobes are on the axis. So dx square minus y square dz square, and nodal plane पे मैंने तुम्हें बताया there is no distribution of electron. So L is equal to 0 में क्या होता था तुम्हारा? S ऑर्बिटल होता था, तो 0 नोडल प्लेन रहता था. These are the nodal plane, right? यदि L तुम्हारा 1 रहता है, P ऑर्बिटल है, in that one the 1 nodal plane. And if your L is equal to 2, D orbital है, there are the 2 nodal plane. बेटा नोडल प्लेन पता है ना? 2 नोडल प्लेन के कौन कौन से हो गए? एक तो जो तुम एक तो नोडल प्लेन जो तुम इसके अंदर से पास कर रहे हो, राइट? और एक इधर से पास कर रहे हो, राइट? सो जो तुम्हारा नोडल प्लेन है, D ऑर्बिटल में तुम्हारे 2 नोडल प्लेन्स हो जाते हैं, राइट? और P ऑर्बिटल में ओनली, क्योंकि 2 ही लोब्स है तो 1 ही नोडल प्लेन रहता है. तो D ऑर्बिटल को कई बार तुमसे एग्जाम में पूछ लेते ड्रॉ करने के लिए, लाइक ड्रॉ द शेप्स ऑफ D ऑर्बिटल. Then what you have to draw like in this way, जैसे हमने P ऑर्बिटल को ड्रॉ किया था इस वे में तुम ड्रॉ कर सकते हो. बस उसमें elongated दिखाओगे. This is the x y dx y. ये पूरा ढंग से बना लेना, मैंने तो रफ जैसे बना दिया है. जब तुम कोई साइन नहीं दिखाओगे तो यू हैव टू शो लिटिल elongated फॉर्म में तुम्हें दिखाना पड़ेगा. क्लियर है? Yes, ma'am. And I told you d orbital are gyred. D orbital जो तुम्हारे होते हैं they are the gyred, because if you are passing a axis, यदि तुम यहाँ से एक्सिस को पास करो, राइट? तुम्हारा या तो नोडल प्लेन से पास करोगे, राइट? अदरवाइज तुम जो है ऐसे एक्सिस पास करोगे. यहाँ से एक्सिस तुम्हारी ये वाली है, राइट? तो जब तुम इसको पास करोगे, रोटेट करोगे, तो ये तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, राइट? सिमिलर वे में तुम्हारा जब इस पे 180 डिग्री पे पॉजिटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा, राइट? सो तुम्हारा जो है ये जायरेड सिमेट्री रहते हैं, इनकी सिमेट्री जो है चेंज नहीं होती है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज हैविंग ए सिमिलर सिमेट्री, राइट? So d orbital are gyred. One we start from one point, go to the opposite point. जैसे तुम एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे, अपोजिट पॉइंट पर जाओगे, यू हैव टू पास थ्रू सेंटर. हमेशा हमेशा हमें एक सेंटर से पास होना है. ये तुम्हारा सेंटर है, राइट?
तो तुम्हें इस सेंटर से पास होना है, राइट। तो तुम्हारी जो एक्सिस है, जब तुम इस सेंटर से पास करोगे, ये मान लो कुछ एक्सिस हमने खींची है, राइट। यदि इसको रोटेट करोगे, राइट, सो योर साइन विल बी सेम, दैट्स व्हाई योर ऑर्बिटल विल बी जेड। क्लियर है बेटा? दो इसमें बच गए हमारे इजी वाले। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोल। मैम बोलो हमारी बेटा। दूसरी क्लास भी है मैम, लिंक आ चुका है, हमें ज्वाइन करना हाँ होगा। नहीं छोड़ रही हूँ, 2 मिनट में छोड़ रही हूँ बेटा। ओके ये बस मैम। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बता रही हूँ, एफ का हम कल कर लेंगे। सो यू ऑल नो like this is the your x direction, this is your this is your x direction, this is your y direction, right? So you have to plot the x square minus y square, right? So you are getting like in this way, minus minus plus plus, similar way में, but x square minus y square that should be on the same lobes के ऊपर ही रहती है, axis के ऊपर ही रहती है, lobes will be on the same axis, right? Similar way when you are plotting for the x z square के लिए dz square, and this is your ring is there in the dz square. So प्लस प्लस एंड माइनस के लिए तुम्हारी रिंग के ऊपर जो रहता है वो माइनस साइन रहता है, राइट। दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। योर रिंग विल बी इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तुम्हारी जो रिंग होती है वो एक्स वाई प्लेन में होती है, और ये ऑर्बिटल किससे बना है? डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से तुम्हारा जो है ये ऑर्बिटल बना होता है, because you having the only the 5 orbitals in case of the d orbitals, d के अंदर तुम्हारे 5 orbitals है, hence these two are combined and we get the distribution on the z axis, that's why dz square, ठीक है। और तुम्हें यदि इसको ही देखे ना आस्क इन एग्जाम, यू हैव टू ड्रॉ द ऑर्बिटल्स जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यदि तुमसे ड्रॉ करने के लिए पूछा जाए तो सिंपली तुम इस वे में ही ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा एलोंगेटेड रखना है, ठीक है। और मैम अगर साइन लगा दिए तो? साइन लगाओगे तो क्या है, साइन लगाओगे तो तुम्हारा साइज स्क्वायर नहीं हुआ है वो, राइट। साइन लगाया तो ओनली वेव फंक्शन को ही डिफाइन कर रहा है, साइज स्क्वायर दिखाने से वो कई बार प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछी मीन साइज स्क्वायर, राइट। तुमसे यदि प्रोबेबिलिटी पूछेंगे एग्जाम में तो तुम्हें जो है साइन नहीं लगाना है, फिर वो पॉजिटिव साइन आएगा सारा, ठीक है मैम। क्योंकि साइज स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव है, दो चीजें हो गई तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। निकाल दोगे दोनों, ये ऑर्बिटल बना लेना है ना, ये मैंने बनाया नहीं पूरा, एक्स है वाई है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर के लिए बना लोगे, एक्स एंड जेड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और जो है हम जो है एफ ऑर्बिटल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो मैम। नो मैम। क्लियर है सभी? क्लियर है बेटा सभी को?